See, when it comes to National Security Advisor, the first thing is that he is the head of the National Security Council. And being the head of the National Security Council, one thing is very important to understand, that he also gets complete inputs from a body known as the JIC, that is the Joint Intelligence Committee. Now, getting the inputs from the Joint Intelligence Committee means that getting the inputs from India's internal and external intelligence agencies. So, as a result of which, the first point to be kept in mind is that when it comes to the National Security Advisor, the person here concerned, NSA, is directly the eyes and ears of the Prime Minister when it comes to the day to day intelligence activity done by the country, done for the country. Second important thing is that most of the times when it comes to external intelligence is always with respect to foreign countries. And National Security Advisor and the body called the National Security Council play a very important role in the analysis of this kind of foreign intelligence which is there. Because see, National Security Advisor is just one person. He is the person who will take the file to the Prime Minister and tell the Prime Minister that these are the issues with respect to foreign intelligence, and therefore let's do this. But when it comes to the intelligence coming to the NSA from the JIC, that is the Joint Intelligence Committee, let's not forget one thing, that every piece of intelligence that comes to the National Security Council is then also examined and discussed by various analysts who are there. So in the National Security Council, you have various members who are there. Each of the member in the National Security Council will further provide their own expertise and inputs in the National Security Council to the intelligence that comes from the JIC. And as a result of which, you see, first, whatever reaches the Prime Minister will be of extremely crucial importance. See, the filtration structure is very clear, right? The Intelligence Bureau as an organization, Research and Analysis Wing as an organization, they will first gather their own intelligences. The heads of each of these two intelligence agencies, being a part of the JIC, will prepare reports and present it in front of the JIC. JIC will then subsequently use those intelligences to present it before the National Security Council. In the National Security Council, the experts will work upon the inputs which are given to the GIC or from the JIC. That means that the people who are actually sitting in the National Security Council are people who are more experienced in day-to-day running of affairs of the country, specifically at the security and foreign policy level, over and above the JIC. And who are the people in the JIC? The people in the JIC apparently are the people who are the intelligence chiefs of the country. So as you go up in the hierarchy up till the NSA, you have very clear-cut, precise, short information, which on meeting number one with the Prime Minister can directly help the Prime Minister to take certain foreign policy decisions which are there. Second important thing to be understood is that the important role of the NSA, NSC as a body here is to provide intelligence to basically execute certain aspects of foreign policy and apprise the Prime Minister on a day-to-day basis on certain aspects of the foreign policy. For example, whatever may be happening between India and US at the PANNU level is not going to be analyzed by the Prime Minister himself on a day-to-day basis. He will get very precise inputs from the National Security Council and from the NSC via the NSA that this is exactly what the issue is and this is how we ought to react. So what is the objective of the NSA? That NSC as a body is guiding the NSA, and the NSA as a person is then informing the Prime Minister to basically have a particular level of opinion on the foreign policy. So you can very well imagine that the role of the NSA in this regard is that the NSA provides those kind of vital intelligence inputs that enable the Prime Minister to implement certain foreign policy decisions. So they influence the Prime Minister, they influence the foreign policy, number one, in a very big way. Second important thing is that when we look at the role of NSA, specifically in the NSC, there can also be a probability that the Prime Minister at times might even ask the NSA or the NSC to carry out certain activities on behalf of the Prime Minister
where prime minister basically may come at a later stage. By for example, the NSA can be asked by the prime minister to carry out certain back channel diplomatic negotiations. NSA can be tasked with the objective of carrying out these back channel diplomatic negotiations on behalf of the prime minister, but in the absence of the public domain, so that in the near future they can play a very comprehensive role when it comes to basically improving or changing certain aspects of the bilateral relationship. One such case has been the role of the National Security Council and NSA in the recent times with regard to Saudi Arabia. That Saudi Arabians, which had historically always had a policy of negativity on India's Kashmir, and always believed that India does not have a rightful claim over Kashmir, and Pakistani claims were supported by the Saudi Arabians, this is something that was decided to be changed upon. And from 2014 till almost to 2018, for 4 years, at the back channel level, there were direct diplomatic talks between India's NSA and the people in the higher positions of Saudi Arabia. And as a result of the consequence of this, what happened finally? That finally India was able to convince Saudi Arabia not only about the legal aspects with regard to our Kashmir issue, but succeeded in convincing Saudi Arabia to alter their position with respect to Kashmir. And it is in this backdrop that when in 2019 the abrogation of Article 370 happened, Saudi Arabia at that time never gave a negative opinion or comment about it. They ended up in simply saying that it is a domestic issue of India and we let them decide upon what they want to do. So the National Security Council, on behalf of the Prime Minister, led by the NSA, at the back end level, number one, can do this. Number two, the other important aspect that the NSC and the NSA can do is that they can also, on behalf of the Prime Minister, direct certain military aspects of military operations. So two examples are here. First example is that when it comes to surgical strikes with respect to Pakistan, there is general tendency that when we look at those surgical strikes, that these surgical strikes have been managed by the NSA through the NSC. And NSA has played a crucial role in planning, implementing these surgical strikes, uprising the Prime Minister on a regular basis, thereby affecting India-Pakistan relations. Similarly, in the recent times, it has been disclosed by the government that the diplomatic negotiations with China over friction points in Ladakh, these were also resolved while on the ground by the core commanders of the military, and military core commanders played a role, but at the back end, they were basically directed from the Indian side by the NSA. So NSA here also played a very crucial role in directing the military. And when we say directing the military, we are trying to say that the NSA provided the important aspect of giving strategic communication to the military. Strategic communication to the military, which the core commanders of the military were able to utilize for carrying out solutions to the problems on the Indo-China boundary at the Ladakh standoff. So see, there are various ways in which the NSA, NSC can basically influence foreign policy. But please remember that most of these activities happen directly under the overall supervision of the Prime Minister, not without anything else. Now we come to the question that what is the role of Cabinet Committee of Security in foreign policy making? See, the Cabinet Committee on Security in foreign policy making can basically undertake various kinds of roles. One of the most important roles that they can do is that they can basically try to create what is called as the public opinion. They impact the social structure directly. They impact the public opinion in this manner that they basically create a kind of a narrative of the foreign policy which the country has to follow and which is meant for the public consumption. Not only public consumption, but the other important part of the Cabinet Committee on Security is that they also provide a policy brief that the government is going to use for the foreign policy with respect to the parliament. So in the parliament, if the prime minister, home minister, foreign minister, defense minister, if they are going to be asked any question,
with respect to their domains to ensure that all of these four people speak in the same current language. The parliamentary language is then at the backend level, number one, decided by the Cabinet Committee on Security. And similarly, at the same time, by putting out that parliamentary language in front of the people, we say that they help in strengthening democracy because they help to shape the public opinion. They help to basically understand to the people that what kind of foreign policy is the country adopting and why. But then there are examples when this kind of an activity of Cabinet Committee on Security has been under scrutiny for certain negative acts as well. For example, it is in the year of 1999 when India was having a Kargil flashpoint with Pakistan, and at the peak juncture means when the Kargil conflict was happening on the ground. At that time, India's research and analysis wing basically intercepted communication between Parvez Musharraf and his army chief during Kargil. And those transcripts about what they were talking, why they were talking, were picked up by the RNAW, taken by the RNAW to the that time's foreign minister Jaswant Singh. Jaswant Singh decided to put those communications in front of the Cabinet Committee on Security. And very surprisingly, those transcripts of communication between Parvez Musharraf and the then Army Chief of Pakistan, though they were highly classified, though they were designed to give the Cabinet Committee on Security an idea about how is Pakistan operating, so that they could provide through the Cabinet Committee on Security to the military certain strategic inputs on how to tackle the situation. The problem was that when those transcripts were played by the RAW chief, who was a participant in the Cabinet Committee on Security at that time, and where the Prime Minister at that time, Vajpayee, was also sitting, the irony is that the then Foreign Minister Jaswant Singh, he decided that why not to disclose these transcripts at the public level. Let through the media, the country of the people also should know that, that what kind of transcripts are here. And it is very ironical that at that time, sitting in the meeting, India's army chief, India's RAW chief, India's intelligence bureau chief, who were also representatives in the Cabinet Committee on Security meet, all these three people immediately opposed that. They said, sir, please don't do this. Disclosing some sensitive communication that the RAW has intercepted to the public is going to be detrimental for our security. Because if we disclose this, then one thing is very certain, that the Pakistani ISI will instantly understand that how were we able to actually intercept that. And they will be able to develop countermeasures for it. But the problem is that at that time, the then Foreign Minister Jaswant Singh wanted certain kind of support from the media. And he went on, despite the objections by the chiefs, he went on to the public, and press conference was organized after the meeting of the Cabinet Committee on Security, and the transcript was played in front of the entire world. The consequence of this is that since that day till today, India has never been able to now develop a technology to intercept the communications between the Pakistani army officers. We have lost that credible channel of technical intelligence. Just because certain people in the cabinet at that time ironically favored certain kind of media hype. आप समझ रहे हो इस चीज को सर? तो ये इन बीजेपी वालों की फितरत, इनके खून में है कि मीडिया से शाबाशी लेना. देखो सर, जो भी आदमी इस प्रकार की हरकत करता है ना, ये आप समझो कि वो बड़ा लो सेल्फ एस्टीम वाला व्यक्ति होता है. क्योंकि जिस आदमी को बार बार मीडिया वैलिडेशन, सोशल मीडिया वैलिडेशन चाहिए अपने कामों की ना सर, वो व्यक्ति बहुत ही पुअर सेल्फ एस्टीम का और साइकोलॉजिकली बड़ा डिरेंज्ड व्यक्ति होता है.
और आप देखो तब से लेके ये कॉमन फिनोमिना इनका आज तक, मैंने आपको कई बार पहले भी ये बात बताई है। भाई सर्जिकल स्ट्राइक तुमने पाकिस्तान में जाकर करी, इसमें ढिंडोरा पीटने की क्या आवश्यकता है? हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, अमित शाह कह रहा है अबे हाथी तू जाके करके दिखा, तू एक कुर्सी उठा के दिखा, अपने लौंडे को भेज, शक्ल देखो उसकी कैसा दिखता है वो, एक स्पेसिफिक जानवर से उसकी शक्ल मिलती है। मतलब आप हर चीज को यार मतलब इस तरीके से बना देते हो कि भाई आपकी मार्केटिंग ही होनी चाहिए। आप चीज को तो समझो यार, देर आर सर्टन मैटर्स ऑफ सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी। उस समय एक हमारा वो आर्मी चीफ हुआ करता था जो लेटर जाके सीडीएस बना, बिपिन रावत कर का, वो सेम वही संघी बैकग्राउंड वाला। आपने अगर उसका एक स्टेटमेंट सुना हो, आप सर्च करके देखना ये स्टेटमेंट उसका, पब्लिक लेवल पर आके एक बार वो कह रहा है कि भाई इंडिया की आर्मी ने कश्मीर में कॉन्सेंट्रेट वो बना रखे हैं, डिटेंशन कैंप्स बना रखे हैं हमने, हम उन डिटेंशन कैंप्स में कश्मीरियों को मार रख के जो है उनको डी रेडिकलाइज करते हैं, एंड दे आर बेसिकली नथिंग बट नॉट जस्ट डिटेंशन कैंप्स बट डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स। The fact that you are accepting that there are de-radicalization camps you have established in Kashmir proves that there is an utter failure of your policy, which has led to what is called as excessive level of radicalization in the valley. But वही है ना सर कि they all suffer from unfortunately what we call as the verbal diarrhea सर। तो ये चीज इन लोगों को कभी समझ नहीं आती। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो कोई रियलिटी रिलीजियस बायस, आपको क्या लग रहा है बीजेपी कोई बड़ी रिलीजन की ठेकेदार है? आपको लग रहा है कि सनातन धर्म या हिंदुओं को लेके बीजेपी को कोई बहुत बड़ा वो है? सर अगर होता ना आज की डेट में, तो सबसे बड़ी चीज को समझने की कोशिश करो कि इंडिया इस मोमेंट पे 2024 में टॉप का बीफ एक्सपोर्टर नहीं होता। आप इस चीज को समझो। The fact that India is still today, in the last 10 years of this wonderful so-called pro-Hindu government, remains the topmost beef exporter. Beef exporter, sir, not the buff. Buff and beef are two different things. Beef, cow meat. आप समझ लो उसके बाद। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि उतना ही जैनी होना जितने गुजराती जैनी होते हैं, जो बाहर जाके शाम को फिर वो रेडी वाले से अंडा खाते हैं। तो ये चीज को समझो सर, ये बीजेपी का कोई ये रिलीजन से नाता नहीं है सर, उनको कोई आपके सनातन धर्म हिंदुओं से, हिंदू हिंदू धर्म से कोई प्यार लगाव कुछ नहीं है सर। अगर होता ना जेन्युइनली प्यार लगाव, तो पहली बात ये राम मंदिर के नाम पे जो इन्होंने ठगाए लोगों को वहां पे फैजाबाद में ये वो ना करते और वो सीट जीत जाते। बट वो भी नहीं हुआ सारी कोशिशों के बाद। इनके साथ फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि सर दीज पीपल right from the shakhas or from wherever whichever culture they grow up into, these people are born with a very low self esteem. Their upbringing is brought up in such a manner that they have been repeatedly told that we are victims of certain bias. तो आप अगर कभी इनका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल पढ़ोगे ना सर ये इन लोगों का, तो आपको समझ आएगा कि when you are born and brought up in a culture of low self esteem, then validation becomes a very important point. इसीलिए आप एक कॉमन पॉइंट ऑब्जर्व करना कि why I am saying this and you will observe this is कि जितने भी ये जो सो कॉल्ड बीजेपी वाले होते हैं ना, आरएसएस का तो छोड़ दो, चलो जो बीजेपी वाले खासकर भी होते हैं ना, इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई देम। वो भगवाधारी, टीकाधारी, हाथ में कुछ ये सब करके नोटंकीबाजी करके या वैसे किस्म के कपड़े पहन के, दे विल यूज सर्टन सिंबल्स टू कम्युनिकेट। एंड सर आप इस चीज को समझो, व्हेन यू आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ सिंबल्स टू कम्युनिकेट and connect with the public at large, it proves the fact that you want validation of your identity, because you are suffering from a very very serious what is called as a psychological identity crisis. तो इनके लिए इस सेल्फ एस्टीम को कवर अप करना, आइडेंटिटी क्राइसिस को कवर अप करने का तरीका ही यही है कि वैलिडेशन करो। उस समय सिर्फ मीडिया होती थी, अब सोशल मीडिया भी, तो अब दोनों टूल्स मिल जाते हैं इनको, मीडिया प्लस सोशल मीडिया। तो ये चीज परमानेंट रहेगी, और इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंस होता है, जो डैमेज होता है ना सर, वो अनडू नहीं हो सकता कभी। अब देखो एक साधारण सा क्वेश्चन उठता है, जो क्वेश्चन ये उठता है कि IC 814 का हाईजैकिंग हुआ, उस हाईजैकिंग में आपने मसूद अजहर को छोड़ा, ये सबको पता है।
मसूद अजहर ने जाके जैश ए मोहम्मद बनाई। 250 पैसेंजर वर्सेस मसूद अजहर। सर आपके यहाँ पर इंसान के जान की वैसी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर जान की इंसान की वैल्यू होती तो पहली बात रोड रेज से लेके पोल्यूशन से लेके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोवाइड करते। द फैक्ट कि आपको कितना इंसान की वैल्यू है वो ये आपके डेवलपमेंटल मॉडल से समझ आता है। आपने वो 250 लोगों को बचाने के चक्कर में, जिनका वर्थलेस कंट्रीब्यूशन है इस देश को लेके, कि पता भी नहीं कि उन निखत लोगों ने जीवन में उसके बाद देश के लिए किया क्या, जिनको बचा के सरकार लाई। आपने एक हार्डकोर आतंकवादी को छोड़ दिया जिसने छोड़ने के बाद कम से कम 2,500 लोग मार दिए। यही चीज सर अगर इसराइल होता ना, वो कहता कि 250 लोगों को भी बचाएंगे और मसूद अजहर को भी मार देंगे और उनको भी जाके मार देंगे। ये फर्क होता है सर सोच में। आज बीजेपी आंसरेबल होनी चाहिए इस बात के लिए कि भाई तुमने मसूद अजहर को क्यों छोड़ा, नहीं हमें पैसेंजर छुड़ाने थे। तुमने पैसेंजर छुड़ा लिए, उन्होंने कोई बड़े भारत रत्न के काम किए देश के लिए, इनको छुड़ा के लाए निखत लोगों को आप। और जिस एक व्यक्ति को आपने छोड़ दिया उस रिगार्ड में, जिसने उसके बाद 2,500 लोगों को से उससे ज्यादा लोगों को मार दिया अलग अलग अटैक्स में, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? सर द प्रॉब्लम इज, यू नो व्हाट, वी पीपल इन इंडिया आर वेरी वेरी सब्जुगेटेड पीपल। हम लोगों की साइकी और माइंडसेट ऐसा है कि सर हमें बचपन से यही एक सिखाया गया है कि क्वेश्चन ज्यादा मत करो, ना घर में क्वेश्चन ज्यादा करो। तो जाहिर सी बात है जब आप घर में अपने घर वालों से क्वेश्चनिंग नहीं करोगे तो आप बाहर निकल के अपने नेताओं से क्वेश्चनिंग नहीं करोगे। क्योंकि एक घर में पहले ही दिन से माहौल बना हुआ था ना कि पापा से डरो या मम्मी से डरो, सो डोंट क्वेश्चन देम। वो कनेक्ट ही नहीं बना कभी। वो सर हमारे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सर, वी आर अ वेरी गुड केस स्टडी एट द ग्लोबल लेवल ऑफ सोशियोपैथ एंड साइकोपैथ्स। हमारी जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस है ना सर, दे आर नथिंग बट प्रमोशन ऑफ सोशियो एंड साइकोपैथोलॉजी। अनफॉर्चुनेट चीज है सर। आप सोचो कि फादर सन के बीच में बॉन्ड नहीं होते, फादर मदर के बीच में बॉन्ड नहीं होते, मदर सन के बीच में बॉन्ड नहीं होते, फादर डॉटर मदर डॉटर के बीच में बॉन्ड नहीं होते। एंड देन वी एक्सपेक्ट कि हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। सब मिराज है सर ये। तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का ये एक एग्जांपल आप याद रख लेना, इनकेस अगर आपको जरूरत पड़े लिखने की कि भाई कैसे डिस्पाइट द ऑब्जेक्शन टू द release of the information, the things went on further, unfortunately, and this untoward incident happened finally. अब आते हैं इस चीज पे सर। देखो सर, पॉसिबल सब कुछ होता है, करने का ना जिगरा चाहिए होता है। हमारे यहाँ पर ये जो किन्नर और हिजड़ों जैसा एटीट्यूड है ना हमारा, अनफॉर्चुनेटली इस हिजड़े एटीट्यूड से हम देश का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ठीक है ना? तो करने को अगर आप चाहते हैं ना, तो मैंने जैसा बताया इसराइल जो करता है ना, जो जेन्युइनली जिसको कहते हैं घर के अंदर घुस के मारता भी है, घर को लूटता भी है, और घर के अंदर आपको वहां से परमानेंट निकाल भी देता है। आप पहले तो वैसा जिगरा लेके पैदा हो। हमारे यहाँ ये वो जिगरा था ना सर, ये 17th 18th सेंचुरी के बाद वो खत्म हो गया, ब्रिटिश के ऑनसेट के टाइम पे था। एक समय मराठियों में वो शिवाजी महाराज वाला, सिखों में वो एक समय गुरु गोविंद सिंह वाला, नॉर्थ ईस्ट में वो नागाज वाला। अब हम सारे के सारे अनफॉर्चुनेटली एंड सॉरी टू से इंक्लूडिंग मी, हम लोग सारे अब हिजड़े हैं। सारे हिजड़ों की कौम है देश में हमारे। किसी की हैसियत नहीं है कुछ करने की आज की डेट में। वरना ये जो आपके नेता है ना सर, इनको सड़क पे पकड़ पकड़ के आप धो सकते हो एक एक मिनट में, जिन्होंने आपके देश का भट्टा बिठाया हो। और वही बात है, कौन करे? तो ये टेररिस्ट को डील करने का कोई तरीका नहीं, और सारा गेम प्री प्लान्ड था सर। मैं तो कह रहा हूँ आज की डेट तक अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि इस देश में IC 814 को तो लेके कभी सत्ते हमने बाहर निकाला ही नहीं। आप सोचो कि कितनी आयरोनिकल सी बात है। जहाज काठमांडू से उड़ रहा है, इंडिया में आ रहा है, इंडिया की एयर स्पेस के अंदर वो काठमांडू से उड़ता हुआ अमृतसर तक जा रहा है। हमारी एयरफोर्स क्या बैठ के मतलब क्या कर रही थी? कीड़े डाल रही थी कहीं पर? आप बताओ ना मुझे। आपके एयर स्पेस के अंदर अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट चल रहा है जो आपको पता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात होते होते आपको समझ आ गया है कि वो हाईजैक हो चुका है प्लेन, तो पहली बात आपकी एयरफोर्स क्या कर रही थी? दूसरी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो ये है कि भाई साहब जब वो प्लेन लैंड करा और 45 मिनट्स वो अमृतसर पे था, आप इतने दयावान हो कि मतलब आपने उस प्लेन को अमृतसर में बोला कि हम इसको फ्यूल भी करवा देते हैं। आपने फ्यूल चढ़वा दिया प्लेन में। सोचो आप यार।
सर मैं फिर वही कह रहा हूँ, जिस दिन आपको इस देश के असली सत्य पता चलेंगे ना, अगर कभी आप कभी मौका मिला इंटेलिजेंस में सर्व करने का, तो आपको पता चलेगा सर कि यू आर लिविंग लाइफ ऑफ हिपोक्रेसी। किसको बचाना चाह रही थी उस जहाज के अंदर सरकार? ये आंसर देना चाहिए उनको, क्योंकि एक व्यक्ति था जो वाजपेयी के सबसे क्लोज था उस समय, जिसको सरकार ने कहा था कि बस ये व्यक्ति ना मर जाए क्योंकि इससे वाजपेयी मर जाएगा। उस एक व्यक्ति को बचाने के लिए सर आपने 2,500 जाने खो दी देश में। ये फितरत है इस देश की। और टेररिस्ट को, वो जो मसूद अजहर को छोड़ने गया था ना, वो आज की डेट में एनएसए है हमारा। वही हाथ पकड़ के गया था उसको, बड़ा जैसे उसका यार लगता है तेरा। पूछो उससे सवाल ये। पाकिस्तान में 16 साल रह के आया था, 16 मिनट नहीं रह सकता वो आदमी वहां पे। चपेट मार के भगा दिया जाएगा उसको। बातें करते हैं ये लोग, झूठ फैला लो बस इनसे। तो टैकल करने का तरीका हर जगह होता है सर। फितरत चाहिए बस, हिम्मत चाहिए टैकल करने की, वो खत्म हो चुकी है। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट। अगला क्वेश्चन है सर, इन मेकिंग ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी think tanks have special role to play. Examine the statement with respect to the role of think tanks in making of the foreign policy with illustrations to the answer. देखो सर, इंडिया में थिंक टैंक्स का कल्चर हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Initially there were no think tanks, so as a result of which in the initial years of our foreign policy, let's understand one thing, that most of the inputs were given by the academia. Academia means the colleges and universities, which acted as informal kind of think tanks which are there. Now, second thing is that most of the colleges and universities at that time would often come out with research papers. And those research papers would not be prescriptive, but descriptive. Let's understand the difference here. They would not be prescriptive, but descriptive. Descriptive means that most of the research in our university colleges at that time was concerned and centered around whatever decision government has taken, whatever policy government has taken. So we would then offer a deep, detailed description of that. We would refrain from providing any prescriptive suggestions to the government, prescriptive solutions to the government. So that culture, number one, of providing a prescription to the government on a input of foreign policy was not there. While we had universities and colleges providing research papers, but they had a very restricted domain. Now, over a period of time, specifically since the end of Cold War, what happened is that India started witnessing rise of certain think tanks. Firstly, these think tanks that emerged were emerged in the form of government think tanks. Institute for Defense Studies and Analysis, IDSA, became one of the pioneer think tanks promoted by the Defense Ministry. IDSA, which was basically established by the Defense Ministry, became a national security cum defense think tank, gradually migrated from national security defense to foreign policy. Most of the people who work today in the IDSA are scholars of impeccable reputation. And these are people who are not scholars of impeccable reputation, but they are basically service practitioners who come as scholars for scholarship. So they are the people, number one, who came, and they are the ones who, number one, started creating these kind of deep, detailed monographs. Monograph means a short research paper of around 30 to 50 pages. So they began to create what is called as monographs. And these monographs then started sinking into the public consciousness. Public, which was specifically the intellectual class of the public, started reading IDSA papers, monographs, researches, commentaries, articles, and gradually started becoming aware. But the domain was still controlled by the government only. So it was generally that most of the IDSA publications spoke in favor of the government. They started offering prescriptive solutions also, from descriptive to prescriptive. But prescriptive were never designed in a way to be critical of what the government did. Prescriptive was that, okay, government did this, now this is something they can do next. These kind of suggestions started coming. Then gradually what started happening is that we started witnessing the rise of private think tanks, supported, funded by the private sector.
two important examples in this regard that emerged and have become pioneer think tanks today are number one, the Observer Research Foundation, ORF, and second is basically your Vivekanand Foundation, Vivekanand India Foundation, VIF. So, Observer Research Foundation, Vivekanand India Foundation are basically number one funded by the private sector. Second thing is that they provide research on different topics of foreign policy. And not only they provide research on different topics of foreign policy, they engage with a wide range of people, which include university professors, retired practitioners, subject matter experts. So whether it is a subject matter expert, retired practitioner, or somebody from the field, anybody will have a right to basically engage with them. So what they have done is they have diversified the talent pool. So brought in some fresh thinking with regard to how to write things for foreign policy. But again, please remember this entire evolutionary journey till now, till the rise of VIF, ORF, remained the fact that these institutions, think tanks, would remain confined to only doing research. But it is from 2019-20 that we started witnessing another thing. And that another thing was that ORF started pioneering a new concept which came in the form of what is known as the Raisina dialogues. The Raisina dialogues are a very important concept that has led to the shift in the way think tanks influence our foreign policy. Now let's understand how. First and foremost thing is that beta, in Raisina dialogue, what happens is that ORF works with the Ministry of External Affairs to organize that event. It's an annual event that happens in January every year. And then after that, ORF prepares a report, also the Raisina Dialogue Report, RDP. Not very useful from our exam point of view. I've been reading it for last 4 or 5 years. Good articles, general articles for basic understanding, but nothing worthwhile to write in the UPSC, either GS or optional. But general reading it's good. It's nice to read, get a fresh perspective of how people think. Now, what happens in the Raisina dialogue is that because the Ministry of External Affairs is also involved, the MEA as an official state actor working with the think tank funded by the private sector is able to now bring in the Raisina dialogues a very vast audience. And this audience includes certain head of the states, certain foreign secretaries of states, certain defense secretaries of states, certain high profile diplomats, maybe somebody who's a representative to WTO, WIPO, World Intellectual Property Organization, etc. Now, what happens is that all these people assemble in Delhi for the annual dialogue. And then there is a theme every year identified on which they basically give various kind of talks. So, for example, during the times of COVID, these people had a virtual dialogue because obviously there were travel restrictions. And in that report, they prepared, how to have resilient supply chains. And there is a general belief today, again, as it is written by Jay Shankar in his book, India Matters. He says that only after that Raisina dialogue and then in that meeting when we talked about resilient supply chains, that India decided that in the Indo-Pacific also it will focus on these kind of resilient supply chains. And therefore, after that, whenever India met in the Quad Summit, we started saying that we will go for what is called as creation of resilient supply chains. So this is how it influenced our way of foreign policy. Sometimes what happens is that Jaishankar again writes in his book that these kind of events like Raisina dialogues also help you to casually open up with diplomats of other countries in an informal setting. And thereby it gives you the opportunity to enable a formal relationship probably after the end of the meeting. He says that in his book that I had the opportunity to meet some counterparts of Europe. And then after that, India adopted a foreign policy of having deeper ties and decided to have deeper ties with countries of Central Europe.
one of the regions in Europe that we have often neglected in our foreign policy, Central Europe. So these are two examples in the recent times. But please remember one thing, that the entire concept of think tanks in the foreign policy with respect to what is called as US is very different, sir. The role that the think tanks have to play in US is completely different. Why? Because in US, what happens is, ki, sir, these think tanks today offer degree courses to the people associated with them, which is not offered in India as of now. आप इंडिया में ORF के साथ इंटर्नशिप कर सकते हो, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है. But for example, with respect to American think tanks, they offer you degree courses where in those degree courses, you get an opportunity to work with the American Foreign Office also. And as a result of which, the person is trained through that think tank with the interaction with the government to this extent that in the American history, there have been various examples where people from the think tank, because of their association with the foreign policy of America, ended up in becoming into the good books of American president and thereby becoming American ambassadors also. तो अमेरिका में आप इन्फ्लुएंस सोच के देखो सर कितना डीप है कि आपका थिंक टैंक का एसोसिएशन जो है वो सिर्फ एक इंटर्नशिप लेवल का नहीं है. आपके थिंक टैंक का एसोसिएशन इस पॉइंट का है कि कल को अगर आपका आईक्यू अच्छा है, एबिलिटी अच्छी है और आप किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की ओवरऑल थॉट प्रोसेस थिंकिंग के साथ भी मैच करते हो, तो देयर कैन बी अ प्रोबेबिलिटी कि वो आपको एम्बेसडर भी बना के भेज सकता है. तो उस लेवल का जो इन्फ्लुएंस है वो अभी इंडिया में हम उस लेवल पे इवॉल्व नहीं करें. और हमारे यहाँ पर थिंक टैंक्स डोंट ऑफर एनी काइंड ऑफ कोर्सेज विच आर देयर, degree course or certificate course or anything like that, which they should ideally offer in a big way. Because at least institutions like ORF, which are very well established, very well funded, because Reliance fund करती है उसको, और Reliance fund करती है तो जाहिर सी बात है कि पैसा बहुत है उनके पास. So at least they can try to create something where they can have a, if not a degree course, then at least some certificate programs with the ORF, where people can work under the ORF के जो departmental heads हैं, they can design some courses. सो उससे थोड़ा मार्केट रिकग्निशन बढ़ता है आपका. बट वो अदरवाइज अभी इंडिया में वैसा कल्चर नहीं है, तो ये याद रखना है. हम आते हैं जी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर एग्जामिन द प्रीमाइस यूजिंग स्कॉलर. सर द सॉफ्ट पावर कॉन्सेप्ट हैव बीन गिवन बाय अ स्कॉलर हुज नेम इज जोसेफ नाई, NYE, जोसेफ नाई. And Joseph Nye says that soft power is basically a concept that he talked about in his book. The name of the book is called Bound to Lead. Bound to Lead hyphen changing nature of American policy. Changing nature of American power, sorry. Changing nature of American power. Bound to Lead. अच्छा, अभी इस किताब में क्या हुआ है? इस किताब में ये है कि Joseph Nye talked about 3 types of power. He says a country can leverage its military power. When a country leverages its military power, we call that power as coercive power. कि भाई you have a coercive element. You compel another state militarily to display a behavior you want them to display. But then he says that sometimes country use a second type of power, which is called basically the influencing power. This influencing power, he says, is a power which can be exercised through economic tools. That economically you are well endowed. Well endowed means that you may have something in your economy which nobody else has. So जाहिर सी बात है कि in this scenario, if you are economically well built, you will try to leverage that. You will try to use that for the purpose of economically influencing somebody so that they also display a behavior the way you want them to display. And similarly, with regard to the third concept, he says that we call the third concept as the cooperative power. He says cooperative power is basically an example where countries try to use neither military nor economic influence but a general appeal based on culture and values.
And this cooperative power, which is based on certain elements of what we call as culture and values, is what Joseph Nye calls as soft power. But one thing is very clear, that Americans have always historically used coercive power. Europeans have always used their influence, economic power. India, on the other hand, as a country we know today, has used what we call as the cooperative power. So, for example, in the non-alignment period, when India talked about something that we will go for anti-apartheid, we will go for anti-colonialism, we knew very well that militarily we cannot compel another country that, okay, you fight against your colonial power. All that we could have done at that time was that we could have simply compelled them that we can share with you our way of doing decolonization. So that was our way of doing what is called as soft power or cooperative power. Similarly, all those things, like for example, throughout the period of Cold War, one major element of cooperative power that India used as an element of culture was basically its films and music. At least at that time, during the Cold War period, we had very meaningful films that used to be made. We had very meaningful music at that time that used to be made. And our films, music at that time became pretty popular all over the world, specifically where cultural affinity was there. And sir, even in a country, if you don't have cultural affinity, na sir, the beauty is you can still promote your movie and music by simply translating the entire thing into the local language. And India often used to do this. Sir, you'll be surprised to know that in a country like Hong Kong, which is a so-called, a hardcore Chinese territory in the sense that, China's influence in Hong Kong is very well known. Those people who are in Hong Kong, they are basically called Cantonese. जैसे चाइना में चाइनीज होते हैं ना, तो हांगकांग वाले लोगों को भी कॉल देम कैंटनीज. So Cantonese people apparently have a great affinity for Indian music, very great affinity, and they have translated most of the music in the Cantonese language. So you can well imagine, sir, it's an unsaid area. I mean, nobody ever could predict that even in Cantonese we'll do this. Similarly, Brazil is an example, sir. Brazil is an area where, ironically, our yoga has become very popular. भाई योगा अपन ने हर जगह कराया, बट आउटराइट पॉपुलर एक तो होता है कि फोर्सेबली करा दो, जो योगा डे पे करते हैं कि भी चटाई लगाई, लिटा दिया सबको, लेट जा, तो अंदर निकाल ले पूरी बाहर अपनी हवा, अंदर हवा बाहर कर, अब बैठ गए. एक होता है कि सर देयर इज द जनरल अफिनिटी दैट अ कंट्री डेवलप्स विद रिगार्ड टू इट, व्हिच इज द केस ऑफ ब्राजील, सर. Sir, Brazilian people apparently, for no logical reason, have found some deep love for our yoga. And today, if you go to Brazil, you will be very surprised to see that in Brazil, yoga business is a very big business. Very big business. And a lot of yoga schools, camps are coming up there. Similarly, for example, in Canada and northern parts of US, having a border with Canada, those areas are areas where Indian pop music again is very popular. By for example, in Canada today, there are what we call as भंगड़ा classes. मतलब इंडिया में उतनी नहीं है, दिल्ली में उतनी नहीं है, पंजाब में तो है ही नहीं, खैर वहां तो कोई करता ही नहीं भंगड़ा अब. बट कनाडा में बहुत पॉपुलर है. एक चैनल है सर, यूट्यूब पे, कभी इनफैक्ट अगर आप हो पाए टाइम ना तो देखना, इट्स कॉल्ड बी फंक, BFUNK. That channel called B Funk apparently is led by two ladies of Indian origin, two girls of Indian origin, and they teach Bhangra. And they teach it in America. This is one example. Excessively popular. वहाँ सिर्फ गोरे नाच रहे हैं, सिर्फ गोरे भंगड़ा सीख रहे हैं, सोचो. देसी लोग हैं ही नहीं वहाँ पे. तो ये पॉपुलैरिटी जो है, ये जो इन्फ्लुएंस है ना सर, इसके लिए आपको सिर्फ एक कल्चरल अफिनिटी और एक वैल्यू एक्सप्लॉइट करनी है. आप समझ रहे हो? फोर्सेबली नहीं है. जैसे हमारे साथ बचपन में होता था ना कि घर पे कोई आ गया रिश्तेदार, माँ बाप शुरू हो गए, चलो बेटा इनके सामने नाच के दिखाओ. क्यों? पैसे दे रहे हैं वो, नहीं नाच के दिखाओ. तो ये चीज. और फिर हमारे उस समय के जो एक्टर्स वगैरह थे, खास करके अमिताभ बच्चन जैसे हो गया, राज कपूर,
ऋषि कपूर, ये सब टाइप के एक्टर्स उस समय जो है काफी कंट्रीज में पॉपुलर भी हुए। अब देखो वो आजकल एक्टर चल रहे हैं, वो टाइगर श्रॉफ, वो लड़का है लड़की है यही नहीं समझ आता बेचारे की शक्ल देख के पहले तो कि वो क्या है बेचारा। फिर एक वो बिहार में एक एक्टर है चिराग पासवान, बुझा हुआ चिराग, उसकी शक्ल देखो बेचारे की। वो अपने फादर की डेथ पे एक्टिंग कर रहा है पहले। आपने उसका वीडियो देखना चाहिए सर। रामविलास पासवान जब मरा था तो उसके मरने के बाद जब उसका चौथा हो रहा था तो वहां पे एक वीडियो आई है जिसमें चिराग पासवान वहां सफेद कपड़े पहन के रोने वोने की एक्टिंग करते हुए बोल रहा है, मतलब यहाँ से टेक ले लूं, अब ये वाला टेक ले लो, अब ये वाला टेक ले लो। यार तेरे फादर की डेथ हुई है, कुछ तो शर्म कर ले। अब आप समझ रहे हो कि आज की डेट में एक वो नया पागलपन चला है, शमशान घाट से लाइव क्रिमेशन की भी वीडियो बन रही है, लोग व्हाट्सएप की स्टेटस पे डाल रहे हैं मरी हुई लाश की फोटो है। ये जो आज की डेट में बवासीर चला है ना सर, इसका कोई विकल्प नहीं है, देश हमारा खत्म हो चुका है। आप समझ रहे हो? तो ये चीज को समझो आप। जगह का नाम भी तो देखो ना जहां से वो एमपी है, जामुई। अब क्या ही बोले ऐसी जगह के बारे में। बिहार में अपेरेंटली सारी जगहों के नाम बड़े सेक्सी हैं सर। जामुई, छपरा, फाड़ देंगे तुम्हारा कपड़ा। सोचो, कमाल की जगह है वहां पे यार। क्या क्या जिलों के नाम है भाई साहब, गजब है एकदम। बिहार टूरिज्म ने पंच लाइन बनाई थी वो, बड़ी जबरदस्त पंच लाइन थी। घूमने नहीं आओगे बिहार में तो गोली मार देंगे कपार में। कपार मतलब आपके पेट में। मतलब ऐसी टूरिज्म की पंचलाइन अगर आप बना तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ओबामा जैसा आदमी भी टूरिज्म करने आ जाए, ट्रम्प भी आ जाए टूरिज्म करने की, हम जा रहे हैं सिवान। इस बार हमारी जो है न्यू ईयर क्रिसमस हम सिवान में मनाएंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ। सोचो। देखो बिहार का आप कुछ मर्जी कहो सर, बिहार का एक बंदा मेरे को दिल से, मतलब भाई मानता हूँ उसको मैं अपना, हर्ष राजपूत। उससे बढ़िया बंदा बिहार ने कभी दिया ही नहीं, दिया ही नहीं मतलब। अगर बिहार का कोई एक सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल है, कोई ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल, रविंद्रनाथ टैगोर के बगल में खड़े होने वाला, तो वो है हर्ष राजपूत सर। उसके टक्कर में कोई आदमी नहीं है सर। इतना बढ़िया बंदा, और सोचो वो भी यूपीएससी का एस्पिरेंट था एक बार। कहाँ यूपीएससी की तैयारियां कर रहा था और आज देखो कहाँ एक इंटरनेशनल ग्लोबल स्कॉलर थिंकर, मतलब एक फिलोसफर बन गया है वो बंदा। एक इंस्पिरेशन है मतलब ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। और कितनी उसकी एक्टिंग आपने देखी होगी, नेचुरल है सर। मतलब ही डजंट डू एनीथिंग विच इज अननेचुरल, इट्स सो नेचुरल टू हिम, the way he talks, the way he conducts his videos and everything. His language, the command over, the grip over the language तो is exceptional sir. तो nothing can beat that in any way. तो सर सॉफ्ट पावर आपके काफी इन्फ्लुएंशियल चीज होती है। अब आते हैं जी इस चीज पे कि कैन सॉफ्ट पावर अलोन हेल्प इन अचीविंग फॉरेन पॉलिसी गोल्स। तो भैया, how do we look at soft power helping in achieving only foreign policy goals? See, what soft power can do is you have to understand one thing, ki, sir, it is a necessary but not a sufficient condition to help you achieve goals. That is the first aspect you have to look at. It's a necessary condition but not a sufficient condition for help to help you to achieve all the goals. Why? Because please remember one thing, using the soft power, you can only try to convince somebody to do something. It is also up to others to adopt it. भाई आप अपने म्यूजिक को प्रमोट कर रहे हो, पर आपके म्यूजिक की पॉपुलैरिटी अगर होगी और दूसरे की अब्जॉर्प्टिव कैपेबिलिटी होगी, वो तभी तो अब्जॉर्ब करेंगे ना सर। आप समझ रहे हो इस चीज को? अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कनाडा वगैरह में या नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूएस में अगर आप देखो तो वो भंगड़ा बड़ा पॉपुलर है। अब वहां पे उन लोगों को गानों के जो पीछे गाने वाने चल रहे होते पंजाबी गाने, उनकी कोई मीनिंग मीनिंग कुछ नहीं पता होते। लेकिन अब आप सोचो कि वहां पर क्योंकि ये चीज है कि चलो उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई चीज जो वो ना अब्जॉर्ब कर पाए आप उसको भी डिलिबरेटली प्रमोट करने लग जाओ। अब आप सोचो कि मान लो हम ब्रिटेन जाके जो है भोजपुरी प्रमोट कर रहे हैं। सोचो बाबा, ब्रिटिश जैसे सोफिस्टिकेटेड लोग
मतलब वो टाइप के व्यक्ति जो भाई साहब शाम की 4 बजे की चाय पीने के लिए कोट पैंट टाई पहन के आते हैं। हमारे यहाँ तो मतलब निक्कर पहन के ऐसी जगह पे कुचली करते हुए बंदा हाथ में कब पकड़ लेता है। अब वहां जैसी सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में अगर आप सोचो कि वहां जाके आप कहो जी हम भोजपुरी प्रमोट करेंगे या हम आपको हरियाणवी लैंग्वेज सिखाएंगे, बैठ जाता हूँ, बैठ जा। सोचो। तो सर अगले की ऑब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी नहीं है वो चीज की। आप समझ रहे हो इस चीज को। सो absorptive capacity number one matters. Number two, the more important thing is कि sir when you promote your soft power to another state, it's a very patient game because you have to have a tremendous amount of patience for the others to adopt. You know, for example, ब्रिटेन में चाहे भोजपुरी नहीं चलेगी अपन की, पर ब्रिटेन में जो चीज चलेगी सर और जो चल गई है इनफैक्ट वो पता है क्या है? इंडियन फूड। आप देखोगे सर इंडियन फूड ब्रिटेन में इतना पॉपुलर है कि ब्रिटिश लोग भी इंडियन फूड खाते हैं। आप सोचो। हमारे यहाँ की जितनी डिशेज हैं वो वहां बनती हैं। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, बाहर की फॉरेन कंट्री में जाके इंडियन फूड खाना मतलब गोबर खाना। क्योंकि एक तो बाहर की कंट्री में किसी भी जगह पे आप चले जाओ इंडियन फूड उनको बनाना नहीं आता। इंडियन फूड के नाम पे वो जो है मतलब आपको भगवान जाने क्या खिला देंगे। और पैसे आपसे 3 गुना एक्स्ट्रा ले लेंगे इंडियन फूड के नाम पे। पर सर आपको वहां पे रखना है पेशेंस। क्योंकि सर पेशेंस में अगर आप उस कंट्री में जाकर फूड प्रमोट कर रहे हो सर तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट बिकॉज दैट फूड हैज टू बी अडेप्टिव टू द टेस्ट्स ऑफ द पीपल। अब सर आप कितनी आयरॉनिकल चीज देखो कि इंडियन फूड जिसमें स्पाइसेस का एक कंपोनेंट होता है, मसालेदार खाना है हमारा, वो ब्रिटेन में पॉपुलर है। लेकिन ब्रिटेन के ही बाजू में फ्रांस जो है वहां पर पॉपुलर ही नहीं है इंडियन फूड। और फ्रेंच का सर फूड इज सो ब्लैंड, इतना गंदा खाना खाते हैं फ्रेंच। ब्रेड खा लेंगे एक तो सूखी हुई ब्रेड, क्रॉइसॉन क्रॉइसॉन मैक्रून ये वो पता नहीं क्या तुम यार ये ड्रामे चोचले खाते रहते हो। इंसानी खाना खाओ, दाल रोटी सब्जी चिकन मटन मछली बढ़िया एकदम फिश फ्राई वगैरह ये सब खाओ यार। ये क्या है ये यार, मतलब सूखी सी ब्रेड बना लेंगे इतनी लंबी सी, क्रॉइसॉन बना लिया हमने। कहाँ खड़ लिया, हमारे यहाँ पर 10 रुपए की ब्रेड मिलती है वैसी सफेद ब्रेड, आधी भी देते हैं आजकल तोड़ के ब्रेड हम लोग। लेकिन यही चीज है सर, वहां फ्रांस में नहीं चला इंडियन फूड। फ्रांस में ऐसा नहीं है कि इंडियन डायस्पोरा नहीं है सर, अपन की डायस्पोरा है वहां पे और वो डायस्पोरा वहां के फूड को पैटर्न को अडॉप्ट कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात देखो, फॉर एग्जाम्पल इन मॉरिशियस, इट इज वेरी आयरोनिकल दैट इन मॉरिशियस यू विल बी शॉक टू नो सर, बिहारी फूड इज एक्सट्रीमली पॉपुलर। 75% of population of Mauritius today is population of Indian origin descent. And all these 75% people living in Mauritius today, 100% of them are from Bihar. आपको पता है ये बात? मॉरिशियस के अंदर 75% पॉपुलेशन इज इंडियन ओरिजिन एंड 100% ऑफ दिस इंडियन ओरिजिन पीपल कम फ्रॉम बिहार। सर मैं मॉरिशियस के होटल में गया, होटल के ब्रेकफास्ट में भाई साहब लिट्टी पड़ी हुई है। मैंने तो मतलब होटल के मैनेजर को आग लगा दी। आप सोचो कि मैंने होटल चुना था कि भाई साहब मुझे देसी आदमी ना दिखे यहाँ पे कि मेरे को नफरत है उसकी शक्ल देख के, तू यहाँ पे लिट्टी चोखा रख रहा है मेरे सामने। सारे वेटर उनके इंडियन। नमस्ते जी नमस्ते, मतलब होटल में घुसो तो मूड खराब हो जाए आपका कि भैया 7-8 घंटे ऐसी तैसी करा के फ्लाइट लेके आया हूँ तुम्हारे यहाँ पे, नमस्कार कर रहा है बैठ के, बताओ यार। इतनी मेहनत से मैंने ट्रिप एडवाइजर पे दिन रात एक करके होटल ढूंढा था कि जहां पर एक इंडियन बंदा ना जाए। मतलब आप ऐसे फिल्टर सेट कर लो ना, यूरोपियन फूड, ब्लैंड फूड, टेस्टलेस फूड, ऐसे फूड के फिल्टर सेट कर लो तो स्पेसिफिक होटल ही आते हैं क्योंकि इंडियंस को तो वो खाना जचता है नहीं। और सुबह भाई साहब नाश्ते में लिट्टियां पकड़ गरम गरम बना रही है। मैं कहा, यार हद हो गई भाई। मतलब वाजीराम में रह के, वाजीराम के बाहर ठेला लगता था वो हमारा भाई बन गया था, आलोक। वो भाई साहब आलोक जो है, जो वाजीराम के बाहर एक लिट्टी बेचने वाला बंदा था, वो इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया था कि वाजीराम के अंदर पढ़ते हुए बच्चों को बोलता था कि पैसे दे दो, नहीं ये वाले सर को बोल दूंगा बेटा क्लास में बेइज्जती करेंगे तुम्हारी। पैसा दो मेरा। बिहारी आदमी देखो, उसके आधे जेनेटिक्स में तो नेतागिरी है। तो ये चीज को आप समझो सर। मॉरिशियस इज एन एग्जांपल जहां पे देखो लोकल फूड हैज बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। हम समझ रहे हो इस चीज को।
फ्रांस में नहीं है, ब्रिटेन में है, अमेरिका में नहीं है सर। अमेरिका में अपनी क्वालिटी का एक अलग ही जंक फूड है। तो वहां पे वो सड़क पे चलते फिरते जंक खाते हैं, तो उनका अलग कल्चर है। वहां पर हमारा फूड इतना पॉपुलर नहीं चलता। अच्छा, ब्राजील में देखो, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल में बताया कि योगा पॉपुलर है, इंडियन डिशेस पॉपुलर नहीं है। आपने एक इंडिया में नया फैड देखा होगा आजकल, कि इंडिया में एक नया ट्रेंड चला है कि इंडिया में आजकल कोरियन खाना बड़ा पॉपुलर हो रहा है। सडनली आप देखोगे कि रीलों में कोरियन खाना आ रहा है। भाई, हमें कोरियन से कुछ नहीं लेना देना ना, हमारे को कोरियन खाना समझ आता है ना, डिशों के नाम समझ आते हैं, लेकिन सबको जो है ना कोरियन रेस्टोरेंट पे जाना है। भाई साहब, अगर आपको ओरिजिनल कोरियन कुजीन खाना है ना, तो आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोरियन जो है वो कुत्ता भी खाते हैं, वो कुत्ते का मीट खाते हैं वो। आप सर्च करके देख लो, कोरियन ईट डॉग मीट। तो पहले तो वो खाना शुरू करो। घर में जो रखा है टॉमी, काट दो उसको कल सुबह। उसको बोल दो, बेटा कल सुबह जो है तेरा झटका होने वाला है। तो आपको ये चीज समझनी है सर। अब कोरिया का वो एक इन्फ्लुएंस, सिमिलरली सर इंडिया में दूसरी किसी कंट्री का अगर सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस अगर हम देखें एक इलस्ट्रेशन के तहत, तो वो है टर्की। और टर्की का एक पॉइंट आपको पता होगा सर, बकलावा। मिठाई होती है ना बकलावा, आपने सुना होगा, एक बड़ी पॉपुलर सी मिठाई है वो। एक मिठाई होती है सर वो, मतलब इट्स लाइक, जैसे वो पैटी होती है ना, पैटी वाला स्टफिंग होता है ऊपर, और बीच में बेसिकली हनी, शहद और वो पिस्ता और बादाम वगैरह डालते हैं उसमें। तो वैसे टाइप की मिठाई होती है सर। अब इंडिया में सडनली ये मिठाई की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। बट मैं आपको बता दूं सर, ओरिजिनल जिसने आदमी ने टर्किश बकलावा टर्की में खाया है ना, उस बकलावा को खाने के बाद अगर आप इंडियन मेड बकलावा अपने मुंह में डाल लो, तो आपको लगेगा कि आप गौमूत्र पी रहे हो। इतना गंदा। इतना गंदा भाई साहब, मैं बता रहा हूँ। मतलब मैंने टर्किश बकलावा ओरिजिनल खा रखा है। और मैं, देखो आपको मैं वैसे ही, आपको देखने में भी दिखता होगा कि भारी किस्म का आदमी हूँ, 120-22 किलो वजन भी है अपना। तो खाना एक ऐसी चीज है कि मतलब उसके लिए मैं अपने घर वाले छोड़ दूं। तो आप इस चीज को समझो सर, कि मैं जब टर्की गया था, मैंने कसम खाई थी। मैं अपने, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक स्टूडेंट है इनफैक्ट, वो डॉक्टर है, और वो उत्तराखंड कैडर का आईएएस ऑफिसर भी है। मैं उससे, मतलब हमारा फैमिली डॉक्टर टाइप का ही है वो बंदा। मैंने कहा देख भाई, टर्की जा रहा हूँ, बकलावा डेली खाऊंगा, शुगर पक्का बढ़ेगी, दवाई पहले दे दे। कह रहा सर, आप जैसा नीच इंसान मैंने जीवन में नहीं देखा, कि जो शुगर की दवाई एडवांस में इसलिए लेके जा रहा है कि मीठा खाना है, क्योंकि वहां जा रहा हूँ जहाँ पे चीनी मिलती है। मैं क्या, देख भाई, मौत आएगी आएगी, खाना खा के मरूंगा, दिल से खुश होके मरूंगा। और वही हुआ सर। डेली मैंने शुगर की दवाई खाई। मैं कहा कोई बात नहीं, पर बकलावा 250 ग्राम डेली। भाई साहब, वो बकलावा जिसने खा लिया, और इंडियन मेड बकलावा, मैं कह रहा हूँ आप मैच ही नहीं कर सकते सर। ये इन्फ्लुएंस है सर। पर इंडिया में वो बकलावा उतना ही फेमस है जितना आज की डेट में कोरियन फूड फेमस है। थैंक थोंग थोंग नूडल्स का नाम है भाई साहब, समझ ही नहीं आ रहा, बट ये ऑर्डर कर लो। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम सर। कोरियन वॉज एन एक्सपेरिमेंट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में क्या है कि चाइनीज फूड चल रहा था। सड़क पर खड़े होकर ठेले पे हमने यूपी के एक भैये के हाथ की बनी चाउमीन जरूर खानी है। आप समझ रहे हो? तो ये चीज को समझो सर। हमारे घर के सामने एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर साउथ इंडियन खाना मिलता है, और उसका साउथ इंडियन शेफ पता कौन है? नेपाली। मैंने कहा यार, एक बंदा कम से कम मद्रास से उठा के ले आता, वहां कोई कम बंदे हैं वैसे इधर उधर नौकरी के लिए घूम रहे होते हैं, वो बेचारे सुबह गाड़ी साफ करने आते हैं, उनमें से एक को पकड़ लेता। मैं कहा नहीं तो राजेंद्र नगर चले जाता, वहां दिल्ली में तेरे को इतने मिल जाएंगे मद्रास के लोग, किसी एक को उठा लाता वहां से। पर नहीं भाई, नेपाली के हाथ से बनवा रहा है डोसा। तो ये चीज हमारे यहाँ पर पॉपुलर है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सर, देर इज अनदर केस ऑफ निवारी कुजीन। निवारी कुजीन इज द कुजीन ऑफ नेपाल। There were a lot of attempts made by the government of India and Nepal collectively to promote the Nivari cuisine in India, but apparently that cuisine never picked up because we could never understand that. So even though they invested time, energy, it didn't really work out. So there are cases of success, there are cases of failure. That is the second thing. Third thing is that, sir, soft power can work only and only when there is a direct connect with people at large. So for soft power to work, sir, you have to have a direct connect with the population at large. So that is why we say that soft power can work only when there is a tremendous amount of public diplomacy.
बेटा पब्लिक डिप्लोमेसी एक सिंपल लैंग्वेज में ये होता है कि यू डायरेक्टली आउटरीच टू द पीपल ऑफ द अदर स्टेट, डायरेक्टली आउटरीच टू द पीपल ऑफ द अदर स्टेट. So this is the way through which soft power can help you to achieve influence, if any. अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि सर व्हाट आर इंडियन एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्ट पावर, हाउ आर दीज एलिमेंट्स प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसी, व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस इन प्रमोटिंग इंडिया सॉफ्ट पावर अब्रॉड. सर इंडियाज एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्ट पावर इंक्लूड नंबर वन हिस्ट्री. So we often try to tell another country about our very wide, rich historical civilizational past. That is what we try to make them aware of. Second important element, beta, is called culture. When we talk about culture, culture means that today our objective is to showcase the vibrancy of our culture abroad to different countries. So we try to showcase to them how vibrant Indian culture is, which they can come and thereby help us to promote tourism. अब आपने कंट्री देख ली, अब आप उस कंट्री में जाके लेट से बता रहे हो कि देखो हमारे यहाँ पर खजुराहो है, खजुराहो में ये आर्ट है, उस आर्ट की आपने पिक्चरें ले गए, आपने वो पिक्चरें दिखा दी, उस आर्ट से वहां के देश के लोग इंस्पायर हो गए, नहीं 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 ये तो जाना है, ये ही तो जीवन है, आ गए वो. तो सर आप अपना कल्चर दिखाओ. अब हम दिखा रहे हैं कोई वो हम्पी में जी वहां पर वो कोई चकरा सा पड़ा हुआ है, अरे उसको देखने कौन आएगा यार. आप अपने कल्चर को ऐसे शोकेस करो ना सर कि अगले को कुछ मोटिवेशन भी लगे. बनारस जाओ जी, बनारस में कह रहे हैं जी आ जाओ, बनारस में देखो घाट ही घाट है, घाट ही घाट है. ओ भाई साहब हर घाट पे तो शमशान घाट बना हुआ है, वहां पे मणिकर्णिका घाट बन रखा है, हर जगह लाशें जल रही है. फॉरेनर आ जाता है बेचारा टेंशन में, 10 मिनट तो दहशत में आ जाता है कि मतलब खड़ा ही हूँ बगल में ही लाश जल रही है, उसके सो नहीं पा रहा, उसके बाद 30 दिन अगले ट्रॉमा में चला गया. तो आप ऐसे आर्ट को प्रमोट करो सर. खजुराहो है, खजुराहो के बाद उसको सीधा ले जाओ अजंता एलोरा केव्स, कि चल भाई अब तेरे माइंडसेट में साइकी में खजुराहो बैठ गया, अब देख तेरे को गुफा में ले आए. और जब गुफा में लेके जाओ वहां पे केव्स में, तो उसको फिर जो है गुरमीत राम रहीम की वो गुफाएं दिखा दो, तो उसको गुफा एक्सपीरियंस भी हो जाए पूरा. तो कल्चर हम एक प्रमोट करते हैं, ये हमारा दूसरा एलिमेंट है सर. तीसरा है कि सर वी ट्राई टू शोकेस आवर नॉलेज इकोनॉमी सर. नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी में क्या होता है सर कि वी ट्राई टू बेसिकली से कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस अपॉन इन आवर नॉलेज इकोनॉमी इज दैट वी से टू द अदर कंट्रीज दैट सी हिस्टोरिकली वी हैव ट्राइड टू प्रोड्यूस अ वेरी हाई ऑर्डर फिलोसॉफिकल लिटरेचर. जैसे फॉर एग्जांपल सर वेरियस स्क्रिप्चर्स दैट हैव बीन रिटन इन इंडिया, philosophical texts that have been written in India. Now, sir, these are texts that you can actually try to promote to an intellectual audience abroad. आइडियली इंडिया जैसी कंट्री को ये करना चाहिए कि सर ये नॉलेज इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए ये जो स्क्रिप्चरल टेक्स्ट है ना हमारे सर, इन टेक्स्ट के वीडियोस और शॉर्ट्स बना बना के सर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसी जगह पे फ्लड करना चाहिए. कम से कम इससे आपके अपने लोगों की जागरूकता बढ़ती है और दूसरे लोगों की दिलचस्पी बढ़ती है. उनको कम से कम ये पता चलता है कि यार मतलब आज से 3,000 साल पहले भी भैया इंडियंस ये टाइप की चीजों के बारे में बात कर रहे थे जो हमने कभी सोची नहीं. लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि सर ये चीजें हमारे यहाँ पर होती नहीं है. हमारे यहाँ पर ये टाइप की चीजों को प्रमोट करने का कोई कल्चर ही नहीं है, हमारे पास कोई इकोसिस्टम ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे पास अब देखो एक ये बॉडी है सर, ये बॉडी का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन. ये बॉडी का क्या ऑब्जेक्टिव है सर? ये बॉडी बेसिकली पोर्ट्रे करती है इंडिया के कल्चर को अब्रॉड. जो कल्चर एक एलिमेंट है, इट ट्राइज टू पोर्ट्रे इंडियाज कल्चर अब्रॉड. द क्वेश्चन इज हाउ. All that it does is that it takes a specific state government and officials of their cultural department to prepare pamphlets and then organize a meeting abroad where they distribute those pamphlets. अब एमपी टूरिज्म से लोग उठा के ले गए, पैम्फलेट बांट रहे हैं वो ले जाके इधर उधर. सर खजुराहो इज अ फीलिंग, इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी शोकेस थ्रू अ पैम्फलेट टुडे. पैम्फलेट से अगर मतलब खजुराहो समझना है तो फिर बंदा जो है मतलब मनोर कहानियां पढ़ ले, कुछ पढ़ ले और लिटरेचर पढ़ ले.
तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना जो हम नहीं कर पाए, पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज सर, इट हैज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रॉस कल्चरल डायलॉग्स। क्रॉस कल्चरल डायलॉग्स, कि भाई दूसरे लोगों के साथ बैठ के उनके कल्चर के बारे में सीखना, फिर हमारे को हम अपने कल्चर के बारे में बताना। बट द पॉइंट इज कि सर, वेयर डू क्रॉस कल्चरल डायलॉग्स एंड व्हाट डू दे लीड टू, वी डोंट नो। ICCR does so. They organize various cross-cultural dialogues with different cultures of different countries. But sir, the question is that there has been often a debate that what are the outcomes of that? What do you achieve by doing that? आप समझ रहे हो? तो वो चीज के बारे में अभी तक ICCR को क्लैरिटी नहीं है। थर्ड थिंग दैट दे ट्राई टू डू इज सर culinary diplomacy. ICCR has been pretty successful in the culinary diplomacy. Culinary में बोले तो कि फूड डिप्लोमेसी। तो शोकेसिंग ऑफ इंडियन फूड अब्रॉड, जो मैंने अभी आपको बताया कि सर भाई डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज में ले जाके अपना फूड जो है हम प्रमोट कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं। पर अगेन सर, मैंने जैसा आपको बताया ना अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी, कि culinary diplomacy can only succeed sir if the taste palettes of the people of that country are largely in sync with the kind of taste palettes that you have. भाई ब्रिटिश में इंडियन फूड पॉपुलर है, फॉर दैट मैटर ऑस्ट्रेलिया में इंडियन फूड पॉपुलर है, पर फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है। आप देखो कोरिया, कोरियन फूड इज पॉपुलर इन इंडिया, इंडियन फूड इज नॉट पॉपुलर इन कोरिया। जापानीज फूड सर, इंडिया में अभी तक जापानीज फूड का वो पागलपन नहीं आया, थोड़ा बहुत आया है। सुशी, सर सुशी पर से एज अ कॉन्सेप्ट मीन्स द स्किन ऑफ द फिश रैप्ड इन बेसिकली बॉइल्ड राइस। आप मानोगे नहीं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ शिंजो एबे जापानीज प्राइम मिनिस्टर की मतलब हत्या इस कारण से हुई है जब उसने ये सुन लिया कि इंडिया में वेजिटेरियन सुशी बन गई है। गोली मार ली उसने अगले ने। वेजिटेरियन सुशी खाने जाते हैं लोग मार्केट में। अच्छा, एक तो वो चॉपस्टिक्स के साथ पकड़नी होती, वो हमारे को आता ही नहीं। यहाँ चम्मच पकड़ना नहीं सिखाया, नाक में उंगली डाल के भाई साहब ढोकले का पीस उठा के खाने वाली कौन? हमारे यहाँ पर ये लोग चॉपस्टिक कैसे पकड़ेंगे आप सोचो। हम पराठा ऐसे कैसे खाते, पराठा फाड़ के। घर में मम्मी चपाती बना के दे रही, चपाती फाड़ दी, कागज का टुकड़ा है जैसे मतलब रजिस्टर से फाड़ रहे हो। तो सर, चॉपस्टिक सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ डाइनिंग है। और इंडियंस के साथ एक खास आदत है भाई साहब, वो चॉपस्टिक लेके कभी कान में मार लेगा, कभी चॉपस्टिक लेके इधर लगा लेगा, ऐसे लगा लेगा जैसे वो पेन लगाते हैं यहाँ पे वो कारपेंटर वगैरह वाले जो होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे बढ़िया से फाइन डाइनिंग जापानीज रेस्टोरेंट में जाके। अच्छा सर, अपेरेंटली एक याद रखना पॉइंट, कि इंडिया अपने अभी कलिनरी ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहा है। फ्रांस ने पता है क्या किया सर? फ्रांस हैज ऑलवेज बीन कॉल्ड एज अ गैस्ट्रोनॉमिक पैराडाइज। गैस्ट्रोनॉमिक पैराडाइज का मतलब है कि फ्रांस हैज बीन टाउटेड ग्लोबली एज अ कंट्री वेयर गैस्ट्रोनॉमी हैज बीन वेरी हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी इन द सेंस कि सर दे आर बेसिकली पीपल हु एक्सपेरिमेंट विद फूड फ्यूजन्स। अब इंडिया में भी सर ये कला है, फूड फ्यूजन वाली। भाई फॉर एग्जांपल गोभी मंचूरियन ऐसी कोई डिश नहीं है, लेकिन हमने बना रखी है। यहाँ पे हमारे घर के पास एक हल्दीराम बीकानेर वाले हैं, ये जो हल्दीराम बीकानेर है ना सर, इन पे आप अगर जोमेटो पे भी जाके देखोगे, इन्होंने बना रखा है कॉन्सेप्ट इडली ढोकला। भाई कहाँ तमिलनाडु कहाँ गुजरात, दोनों के लोगों में कोई वैसी मेल नहीं है, तुमने इडली ढोकला बना दिया। मतलब क्या मना रहे हो? मतलब फ्यूजन करना भी है तो भाई कुछ ढंग का तो करो। अच्छा, फ्रांस में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना सर, गैस्ट्रोनॉमिक पैराडाइज में फूड फ्यूजन होता है, वहां पे क्या करते हैं सर, दे यूज बेसिकली नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट। फूड के ऊपर नाइट्रोजन। वो आपके सामने सर कोई डिश ला के रखेंगे, डिश खोलेगा, उसके अंदर से धुआं धुआं निकल रहा होगा। अपने यहाँ पर तो पापा ऐसे ले जाए जगह पे तो पापा डरते हैं, आग लग गई आग लग गई। उनको वैसी टेंशन हो जाएगी ये क्या हो गया, वो पानी का गिलास मार दिया अलग ऊपर, सोचो। तो ये चीजों को समझो सर, फ्रांस इन चीजों को एक्सपेरिमेंट कर रहा है क्योंकि उनके वहां पर ये चीजें चल रही हैं। और हमारे यहाँ पर फूड फ्यूजन के नाम पे क्या है, आज हम बनाएंगे 15 किलो का ऑमलेट, 10 अंडों का ऑमलेट, 25 अंडों का ऑमलेट, ½ किलो मिर्ची वाला ऑमलेट मतलब यार इंडिया के फूड ब्लॉगर देख लो आप। मैं कहता हूँ इनको पता नहीं कौन सी दुनिया की बवासीर है यार, ये क्या सॉफ्ट पावर प्रमोट हो रही है हमारी। एक वो चाय वाला है, पता नहीं कौन सा, वो चाय को ऐसे दूध को ऐसे डालते हुए बनाता है, पता नहीं क्या है यार, मतलब ये सॉफ्ट पावर है।
और टिम कुक जैसा बंदा आके उसको मिल रहा है, उसको चाय पिला देनी चाहिए थी उसकी। कितनी अजीब चीज है सर। आप सोचो, गुलाब जामुन डोसा मैंने पहली बार सुना है कि ऐसा भी कुछ होता है यार। अगर ऐसी चीज है तो भाई साहब मैं पहले नस काट लूं अपनी। गुलाब जामुन डोसा ही रह गया था खाना जीवन में। गुलाब जामुन आइसक्रीम तो मैंने खाई है, गुलाब जामुन डोसा भी होता है। सोचो अगर ये तमिलनाडु में उसके मुख्यमंत्री को पता चल जाए गुलाब जामुन डोसा, भाई साहब इस समय कम से कम 4-5 आदमियों का कत्ल करते थे। क्या अजीब चीज है यार। तो सर कलिनरी डिप्लोमेसी ये लोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट एलिमेंट याद रखना कि भैया आईसीसीआर करती है सर पर्सनैलिटी डिप्लोमेसी। ये एक ऐसी चीज है सर जो हर कंट्री नहीं करती, अपन करते हैं। पर्सनैलिटी डिप्लोमेसी में हम क्या करते हैं सर कि इंडिया की जो प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज है ना सर, उनकी इतिहास के बारे में बताते हैं कि हमारे यहाँ पर एक समय महात्मा गांधी थे, कपड़े नहीं पहनते थे, पूरा देश उन्होंने बिना कपड़ों के जो है सबके कपड़े उतार दिए। तो इस तरीके से जो है गांधी की लेगेसी बता रहे हैं, सरदार पटेल की लेगेसी बता रहे हैं। वीर सावरकर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड वीर, खुद ही सीडोनिम से किताब लिखी, अपने आप को ही वीरता कह दिया। जैसे हमारे बाल नरेंद्र वैसे टाइप के जो होते हैं। तो बाल नरेंद्र जो है एक बार खेल रहे थे मगरमच्छ के पास, मगरमच्छ के मुंह में बॉल फंस गई, फिर बाल नरेंद्र गए, मगरमच्छ का मुंह खोला, बॉल निकाली, मगरमच्छ का मुंह बंद करके मगरमच्छ को थप्पड़ मारा और मगरमच्छ की पूंछ काट के खा गए। इसीलिए तब से बाल नरेंद्र जो है चीन से लगाव करने बैठे। और जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो 300 बार चीन गए। तो आप इस चीज को समझो सर। तो हम लोग पर्सनैलिटी डिप्लोमेसी करते हैं कि भाई गांधी के बारे में। पर सर हमारे को एक्चुअल में जो डिप्लोमेसी करनी चाहिए ना सर, वो करनी चाहिए इन पर्सनैलिटीज को लेके। जैसे भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, ऐसे लोगों के बारे में बताओ भाई साहब, चाकू मार दिया। चंद्रशेखर आजाद। मतलब आप डिसाइड करो ना आप क्या टाइप की साइकी प्रमोट कर रहे हो। जब when you go and portray to the world that you are a country of Gandhi, sir, people will perceive you as a docile country। और फिर कल को अगर आप जाके जो है मान लो किसी दूसरे देश में मतलब सर्जिकल स्ट्राइक जैसी करोगे तो फिर आपको कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। आप ऐसी पर्सनालिटी बोलो ना सर कि भाई वी आर पीपल फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ उधम सिंह। ब्रिटेन में जाके ये बात बोलो। ब्रिटेन के जो राजा है, वो पहले रानी थी बुड्ढी, पिछले साल मर गई, अब वो राजा है वहां पे। उसको जाके बोलो ये सरदार जी आए उधम सिंह के फैमिली के, वो डर जाएगा भाई साहब कि मेरे को गोली ना मार दे। तो ऐसे जाके लोगों को टेरराइज करो, टॉर्चर करो उनको। तो ये काम हमें करना चाहिए, पर ये आईसीसीआर नहीं कर रही है। पता नहीं है गांधी वांधी के पैम्पलेट वगैरह बना के ले जाते हैं, क्या मिलता है इससे इनको ये खुद ही जाने। बट चलो एनीवे, अब आते हैं सर व्हाट आर द एलिमेंट्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी दैट हैव विटनेस्ड अ ट्रेंड ऑफ कंटिन्यूटी। सर सबसे पहला एलिमेंट बेटा कंटिन्यूटी का जो है वो है आपका नंबर 1, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। नंबर 2 एलिमेंट है बेटा सिक्योर एंड स्टेबल नेबरहुड। ये फैक्ट्स हैं बेटा, दोनों क्वेश्चन के आप लिख सकते हो, बस इसमें समझाने का कुछ नहीं है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस नंबर 1, नंबर 2 सिक्योर एंड स्टेबल नेबरहुड, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट, नंबर 4 रीजनल स्टेबिलिटी एंड पीस, एंड नंबर 5 नेगोशिएट फॉर इंडियाज वीकर सेक्शंस। ये पांचों पॉइंट हम लोग अलग अलग स्थानों पे बेटा डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको इलेबोरेट करना हो तो आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई ज्यादा अब समझाने की चीज बची नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वो उसमें है विटनेस्ड एलिमेंट्स ऑफ चेंज, तो यहाँ पर लिख लो चेंज फ्रॉम, चेंज नंबर 1 इज एनर्जी शिफ्ट चेंज, एनर्जी शिफ्ट चेंज फ्रॉम ऑयल टू क्लीन एनर्जी। नंबर 2 डिफेंस लेवल चेंज फ्रॉम बीइंग अ डिफेंस इंपोर्टर टू को प्रोडक्शन। नंबर 3 परसेप्शन ऑफ मार्केट फ्रॉम बीइंग एंटी मार्केट टू यूजिंग मार्केट फॉर डोमेस्टिक डेवलपमेंट।
नंबर 4 सर, मैरीटाइम लेवल। फ्रॉम नॉन एंगेजमेंट टू एंगेजमेंट विद ऑल। पहले हम मैरीटाइम लेवल पर एंगेज ही नहीं करते थे, अब इंडो पैसिफिक, क्वाड, I2U2, IMEC, engagement with all. Then, when it comes to with respect to what is called as terrorism, sir, very important. India has witnessed a big element of change here. From only being a voice to now taking action against terror. Pehle we were only raising our voice, but now we take action. So these are the elements of change that are visible today. अब आते हैं बेटा, what is a strategic culture? What role does it play in the foreign policy, sir? What is the strategic culture? अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक कल्चर की। सर, स्ट्रेटेजिक कल्चर में सबसे पहले तो समझना है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्रेटेजिक कल्चर। सर, स्ट्रेटेजिक कल्चर का मीनिंग होता है सर कि एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ अ नेशन, सिंबल्स दैट अ नेशन यूजेस, एंड ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट इट यूजेस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एटीट्यूड, वैल्यू, सिंबल, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। Sir, when it comes to India's strategic culture, we try to often use a mixture of these elements at different places. By, for example, when it comes to our attitude and value, we have always remained stuck to the principle of global peace and harmony. अब यहाँ पर आप एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो जो हमने कई बार चर्चा करी है, इसराइल गाजा में बोलना, और फिर वो यूक्रेन रशिया में बोलना, पापा ने वॉर रुकवा दी थी, तो ये सब चीजें। अच्छा, दूसरा फॉर एग्जांपल सिंबल्स। सिंबल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लाइक ड्यूरिंग द कोविड, दैट टाइम पीरियड सर, नमस्ते बिकेम वेरी पॉपुलर। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि इन ऑर्डर टू ग्रीट समबडी हु वाज अ फॉरेन डिग्नेटरी वेयर वी वर गोइंग और दे वर कमिंग, हम लोग नमस्ते करते थे। दैट वाज आल्सो आवर वे ऑफ मेंटेनिंग सोशल हाइजीन, की चल भाई दूर से बात होगी। आप देखो कि दूसरी कंट्रीज में वो सिंबल अलग यूज कर रही थी। जैसे आपने कई पिक्चर्स देखोगे अगर कोविड के टाइम पे लीडर्स की मीटिंग की ना, तो सर वो एल्बो टू एल्बो ऐसे मिलाते थे, वैसे करते थे। पर हमारे पास हमारा अपना सिंबल है सर, नमस्ते। और फॉर दैट मैटर इवन जापानीज हैव देयर ओन सिंबल, वो झुक जाते हैं बिल्कुल, तो उनका अपना सिंबल है। तो सर, एवरी कंट्री विल यूज देयर ओन सिंबल्स with respect to their own ways when it comes to foreign policy, but symbols play an important role. अच्छा, नेक्स्ट इज सर ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस। भाई ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस में सी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ट्राई टू डू इज we often try to say that whenever we are close to somebody we try to hug them. अब आप फॉरेन पॉलिसी में भी देखो सर, हर एक किसी बंदे का हमने ऐसा गला नहीं होगा जो नहीं पकड़ा पिछले 10-12 सालों। जो मिल जाए, जिसको मिल जाए, हम गला पकड़ लेते हैं। समस्या सिर्फ तब आती है कि थोड़ा रिस्ट्रेंट करना पड़ता है जब कोई लेडी हो, वरना अगर मतलब हमारे को अगर ग्लोबल लेवल पे बोला जाए कि कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, तो मतलब हम वहां पर भी ना छोड़ें। अब आप सोचो कि मेलोनी भाभी, जब उनसे मुलाकात करने हम जाते हैं, मतलब चेहरा कैसे खिल जाता है। मतलब ऐसा खिला हुआ चेहरा मतलब व्यक्ति का तब होता है जब वो एक 20-21 साल का लड़का थाईलैंड जाता है, पहली बार सड़कों पे घूम रहा है। अच्छा, कितनी सरप्राइजिंग बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी जी आज तक कभी थाईलैंड नहीं गए, 10 साल हो गए, सिंगल है, थाईलैंड नहीं गए। मैं कह रहा हूँ कसम से आपको कि साहब एक बार चले गए ना, वापिस नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे। अगर ब्रिटिशर्स ने अपना समर कैपिटल सर शिमला में बना दिया था ना सर, हमारा बैंकॉक में बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बैंकॉक, पटाया, फुकेट, सरकारें वहां से चलेंगी पूरी। सोचो, अमित शाह का है फुकेट में लेटा हुआ है।
जयशंकर कहाँ है, पताया के बीच पे लेट के जो है बातें कर रहा है। सोचो। निमोताई कहाँ है, वो सिर्फ ऐसे बैठी है, बीच पे देख रही है लोगों को। जैसे एक ट्रेडिशनल इंडियन आंटी को जो आप बाहर फॉरेन कंट्री में ले जाओ तो पहली बार जाके पार्क में बैठ के देखती कि ये जीवन में बदलाव कैसे आ गया, ऐसे कैसे लोग रहते हैं बिना थूके इधर उधर। तो ये चीज को समझो आप, कि यहाँ पर सर ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस, बिकॉज एक पॉइंट याद रखना, और आप ये लिख सकते हो, श्री राम चौलिया नाम है एक स्कॉलर का, श्री राम चौलिया, CHAULIA। उसकी जो थीसिस है वो ये कहता है कि द रीजन वाई मोदी हैपेंस टू हग अदर पीपल इज बिकॉज ही बिलीव्स दैट हग्स विल गिव मोर डिविडेंट देन अ हैंडशेक। अब ये इंपेरिकली वेरीफाइड रिसर्च तो है नहीं सर, ये उसका ऑब्जर्वेशन है, पर किताब में लिखा है, हम कोट कर सकते हैं, और ये आदमी संघी है तो आप कोट जरूर कीजिएगा ताकि नंबर भी मिलेंगे। तो ये कहता है हग्स विल गिव यू मोर डिविडेंड्स देन अ हैंडशेक। अच्छा, कई बार ना सर देर इज अ जनरल टेंडेंसी वेयर इफ यू ऑब्जर्व सम लीडर्स डोंट लाइक गेटिंग टच्ड ऑल्सो। मतलब एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं तो ट्रम्प जब सऊदी अरेबिया गया था पहले टर्म में अपने, तो सऊदी अरेबिया ने बोला कि हम इसको अवार्ड देंगे, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है वो बिल्ला होता है, वो लगाएंगे उसके कोट पे। अब सर ट्रम्प की टीम ने बोला कि भाई ट्रम्प डजंट लाइक गेटिंग टच्ड बाय एनीबॉडी। नॉट दैट कि कोई वो संतम ट्रम्प जी हैं, मतलब वो उनके कारनामे बहुत अच्छे हैं वैसे तो अगर देखा जाए तो, बट द फैक्ट इज कि उन्होंने कहा कि भाई ट्रम्प को ये चीज पसंद नहीं है। पर सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाई अब फिर हम कैसे करें, तो उन्होंने इवेंचुअली जो वो मेडल जो है जिसको जनरली चेस्ट पे पिन करते हैं, सऊदी अरेबिया हैड टू चेंज दैट मेडल फ्रॉम बीइंग पिन्ड ऑन द चेस्ट टू फाइनली गिविंग हिम इन द फॉर्म ऑफ अ मेडल, कि हम चलो गले में पट्टा डाल देंगे उसके। एक लाल फीता लगा के। अच्छा, अब ये सऊदी अरेबिया में जो ट्रम्प का व्यवहार था, ये चीज इंडिया में नहीं है। आप देखो इंडिया में मतलब आप मोदी जी आते हैं उसका हाथ पकड़ लेंगे, ऐसे दोनों भाई घूम रहे हैं, मतलब मेरे को कई बार शक होता है कि ये इनकी शादी क्यों नहीं हुई, बीवी क्यों छोड़ के भाग गई, ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं यार। और एक आध मिनट पकड़ लिया तूने मतलब किसी अनजान मर्द का हाथ, तू तो 10-12 मिनट पकड़ के बैठा है यार। ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे भी कर रहे हैं हाथ उठा के, यार मेरे को कई बार ना स्ट्रेस होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज अच्छी नहीं है। चेक कराओ, ये पता कराओ मतलब। तो ये चीज देखो आप, फिर बाकी हर जगह हम जाके जो ये गले पड़ जाना। अभी देखो जर्मनी वाला आया उसके गले लग गए हम। अभी अफ्रीका गए वहां पे उन अफ्रीकनों के गले लग गए, चलो उनके गले लग जाओ, वो बेचारों को वैसे ही कोई गले नहीं लगाता, आपने लगा लिया, वो बेचारे अपने आप को बड़ा मतलब वो भाग्यवान समझ रहे हैं कि किसी ने तो चलो गले लगाया हमें। पर सर ये टेंडेंसी हर जगह काम नहीं आती यार। पर हम कहते हैं कि नहीं हमारी ट्रेडिशन और प्रैक्टिस का पार्ट। तो स्ट्रेटेजिक कल्चर इस तरीके से आपके एक्शंस और कॉन्डक्ट को इंस्पायर करता है। स्ट्रेटेजिक कल्चर में ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस के तहत सर हम एक एलिमेंट को और देखते हैं, और वो एलिमेंट है बेसिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो सर बॉडी लैंग्वेज वाइज देखो हम लोग हमेशा से थोड़े से कैजुअल रहे। जैसा मैंने आपको बताया भाई, हाथ वाथ पकड़ लिया उसका, हाथ पकड़ के काफी देर तक घूमते रहना, तो बॉडी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी मतलब बिल्कुल कैजुअल टाइप की है। एक ही टाइप की बॉडी लैंग्वेज होती है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है सर जैसे पुतिन की है। आप पुतिन की बॉडी लैंग्वेज देखो सर, वो मीटिंग में बैठा हुआ है नॉर्थ कोरिया के गिट्टू के साथ, गिट्टू सामने बैठा है, पुतिन यहाँ बैठा है, पुतिन ने 2 बार माइक नीचे किया, गिट्टू ने भी 2 बार माइक नीचे किया, भाई साहब माइक माइक के थ्रू ही मैसेज कम्युनिकेट हो गया, एक अग्रीमेंट साइन हो गया। ये भी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिसको बड़ा सिलेक्टिवली मतलब हम कहते हैं कि भाई ये चीज हुई। अच्छा, फिर हमारे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है सर, कि हमारे ट्रेडिशन और प्रैक्टिस में ये है कि किसी के यहाँ जाओ तो खाली हाथ ना जाओ। तो हम जब भी किसी डिग्निटरी को मिलने जाते हैं सर, वी ऑलवेज ट्राई टू टेक सम गिफ्ट फॉर देम। अब वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब आपको मैं एक बड़ा सरप्राइजिंग बात बताता हूँ। आपको पता है कि जब ओबामा 2015 में इंडिया आया था, इंडिया में एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ फॉरेस्ट एसेंशियल्स, कॉस्मेटिक कंपनी है सर, फॉरेस्ट एसेंशियल्स करके, बड़ी प्रीमियम लग्जूरियस कंपनी है, अच्छी कंपनी है। उसके प्रोडक्ट्स, इंडियन कंपनी, रेयर होता है कि इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हो, बट उसके जेन्युइनली अच्छे भी हैं क्योंकि प्योरिटी मेंटेन्ड है। सर इंडिया ने, मिशेल ओबामा भाभी आई थी क्योंकि साथ में हमारे, उस टाइम पे ओबामा के साथ,
तो भाभी जी को हमने मतलब फॉरेस्ट एसेंशियल्स का एक गिफ्ट टेम्पर बनवा के दिया। उसमें फेयरनेस क्रीम वगैरह और वो सब चीजें मतलब 10-12 ऐसी चीजें जो थी हमने भाभी को दी। भाभी थोड़ी मतलब आप समझ रहे हो कि क्रीमों की रिक्वायरमेंट वाली थी। तो हमने भाभी को उस समय मिशेल ओबामा को जो है फॉरेस्ट एसेंशियल का गिफ्ट टेम्पर दिया, ये कह के कि भाई दिस इज एन आयुर्वेदा गिफ्ट फ्रॉम इंडिया। तो सर जब आप किसी कंट्री में आप जाते हो ना सर, हम अपने ट्रेडिशन और प्रैक्टिस के तहत, स्ट्रेटेजिक कल्चर के तहत कहते हैं कि भी खाली हाथ नहीं जाना। हम किसी के घर भी जाते हैं तो मतलब 2 समोसे पकड़ के ले जाएंगे, वो अलग बात है कि दोनों के दोनों वहां बैठ के हमने खा खुद ही लिए उसके घर में, प्लेटें उसकी थी बस। बाकी ये है कि लेके जरूर जाते हैं दिखाने के लिए कि देखो हम लेके आए हैं कुछ। और हमारे यहाँ पर ये कल्चर अजीब भी है ना कि भाई जिसके घर आप जा रहे हो, जो आप लेके गए अगला सर्व भी वही कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि यार अपने घर से क्या डालूं, इसको यही डाल दो चलो, हमने तो वैसे ही नहीं खाना, कल सुबह मेड को देंगे, इसको ही डाल। तो हम हमेशा गिफ्ट देके जाते हैं। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि सर कि दूसरा जब आएगा आपके यहाँ पर तो आप जो है उसके लिए मतलब वो आपके लिए गिफ्ट लेके आएगा। तो कई बार जो होता है कि भाई कई फॉरेन लीडर्स जो आते हैं अब वो गिफ्ट लेके नहीं आते। अब नहीं आते तो फिर हमें भी मतलब वो फोमो टाइप होता है ना, जब बच्चे जैसे स्कूल छोटे होते हैं कि भाई रिश्तेदार आए हैं हमें भी कुछ मिलेगा, और एंड में जाके मिलता कुछ है नहीं। रिश्तेदार 100 का नोट देके जाता है, वो भी मम्मी चोरी कर लेती पकड़ के। बचपन में सबके साथ हुआ होगा, आप लोगों के मतलब कुछ नहीं तो कितनी वसूली आपके माता पिता ने की हुई है, आप सोचो। अगर आज आप रिकॉर्ड लगाओ तो इंटरेस्ट के हिसाब से तो कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपया वो ड्यू देने चाहते होंगे आपको इस मोमेंट पे। तो ये चीज को समझो सर, गिफ्टिंग एक हमारा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब आते हैं कि सर डज इंडिया हैव अ स्ट्रेटेजिक कल्चर, एग्जामिन द प्रीमाइस थ्रू द प्रिज्म ऑफ स्कॉलर सर। तो बेटा स्कॉलर का नाम है निकोलस ब्लैरल, वही जिसका नाम हमने पहले भी यूज किया है, ब्लैरल, BLAREL, निकोलस ब्लैरल। सर निकोलस ब्लैरल कहता है कि इंडिया हैज अ स्ट्रेटेजिक कल्चर which has been witnessed through different examples of history. But the problem is that India has never tried to write that strategic culture. अच्छा, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला कि सर इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर इज विजिबल थ्रू आउट हिस्ट्री, बट द लार्जर प्रॉब्लम इज दैट इंडिया हैज ट्राइड टू refrain फ्रॉम राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग दैट स्ट्रेटेजिक कल्चर। अच्छा, इस पॉइंट को इलेबोरेट किया है एक स्कॉलर ने, जो आप यहाँ पर दूसरा लिखोगे, उसका नाम है कांति बाजपेयी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, कांति बाजपेयी। कांति बाजपेयी हैज गिवन एन एक्सप्लेनेशन सर। कांति बाजपेयी कहता है कि सर वन रीजन व्हाई इंडिया हैज रिफ्रेन्ड फ्रॉम elaborating a strategic culture is because the strategic culture is so dispersed कि if we try to document it, there might be demands that why our element of strategic culture is left out. आप ये पॉइंट समझो सर, कांति बाजपेयी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है। वो कह रहा है कि सर इंडिया का स्ट्रेटेजिक कल्चर, अब भाई एक एग्जांपल लो ना बेटा, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस। सर इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, सबके यहाँ पर ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस अलग अलग है। अब भाई फॉर एग्जांपल जैसे यूपी बिहार हरियाणा साइड पे एक जनरल कल्चर ये रहता है कि भाई जो लड़कियां हैं उनको सिर ढक के रहना शादी के बाद। वेस्टर्न इंडिया के स्टेट्स में ऐसा कल्चर नहीं है, वहाँ थोड़ी सी मॉडर्निटी है, फॉर एग्जांपल खास करके मेट्रो सिटीज में। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि कांति वाजपेयी का मानना ये है कि सर इतनी डाइवर्स इंडिया है कि अगर हम डॉक्यूमेंट करने बैठे हैं तो पहली बात तो किताब बड़ी मोटी हो जाएगी, और फिर देर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि किसी ना किसी का स्ट्रेटेजिक कल्चर रह ही जाएगा, वो कंप्लेंट करेगा, वो अपने आप को निग्लेक्टेड फील करेगा। और कांति वाजपेयी ने एक पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोला, वो कहता है कि सर डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो टफ बिकॉज इन इंडिया वी ऑल्सो हैव अ ह्यूज सेगमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। Tribal population have their own traditions and practices that we are till today not aware of. So how do we even document them? And in fact, if we try to document them, it would be good for anthropology also, and also good for the tribal empowerment. पर सर ट्राइबल कल्चर एंड प्रैक्टिसेस को तो हमें पता ही नहीं है, बिकॉज सर वी जनरली ट्राई टू मेंटेन अ पॉलिसी ऑफ नॉट इंटरफेयरिंग इन देयर वे ऑफ लिविंग। तो सर उनके वहां पर जाके उनसे ये बात करना, उनसे पूछना वैसे ही डिफिकल्ट है। सर जैसे बिहार में एक मांझी ट्राइब है, मांझी ट्राइब का जो इतिहास था, अनफॉर्चुनेटली उनके साथ इतना सप्रेशन और बुरा हुआ था कि उनके पास खाने को मतलब राशन नहीं होता था। और आपको पता है कि मांझी ट्राइब के बारे में एंथ्रोपोलॉजी में आप कभी पढ़ोगे तो आप शॉक हो जाओगे कि उनको चूहे का मीट मार के खाना पड़ता था। सोचो ये हालात थे। और आज की डेट में भी
मांझी ट्राइब के बिहार में कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर अभी भी वो बेचारे चूहे का मीट खाते हैं, बिकॉज उनके पास डे टू डे लाइफ के लिए खाने के लिए पैसा नहीं है। अब ये भी एक वर्ग है हमारे देश में। इस वर्ग की, मांझी वर्ग की भी फॉर एग्जाम्पल बेटा अपनी अलग प्रैक्टिसेस होंगी ना सर। तो आप कांति वाजपेयी के पॉइंट को समझो कि सर इफ इट स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग इट, इट बिकम्स अ हरक्यूलिन टास्क। So it's better that we use it as per our convenience rather than trying to document the same. So one thing is very clear that whether it is Kanti Bajpai or whether it is Nicholas Blarel, both of them agree to the fact that yes, India does have a strategic culture. The distinction between the two scholars is upon the point that whether we basically have documented it or not, and the reasons for not documentation. So saying that India lacks a strategic culture will be a problematic thing. But this is where Nicholas Blarel, I repeat again, will say one more point in his conclusion of his paper. He says that lack of documentation has also created ambiguity amongst the public at large in India. Because the public at large in India believes that India does not have a strategic culture. तो सर आप चाहे सारे एलिमेंट्स को आउटलाइन मत करो, बट अगर थोड़े से भी ब्रॉड एलिमेंट्स को आउटलाइन कर लोगे तो कंट्री में एक ये परसेप्शन चला जाएगा कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक कल्चर है। आज की डेट में निकोलस ब्लैरल कहता है कि इंडिया की पूरी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी डिवाइडेड है इस चीज को लेके कि डज इंडिया इवन हैव इट और नॉट। समझ में आ गया जी? अब आपको मैं एक होमवर्क दूंगा सर क्वेश्चन का, और वो अगला क्वेश्चन है पेज 61 वाला, कि भाई व्हाट आर द विजिबल इनविजिबल स्ट्रैंड्स ऑफ इंडिया स्ट्रेटेजिक कल्चर, व्हाट डायरेक्शंस डू दे प्रोवाइड अबाउट इंडियन फ्यूचर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, हैज अ सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड इन इंडिया। ये वाला जो पार्ट है सर, इसके लिए मैं एक काम ये करूंगा कि आई विल गिव यू पीपल अ बेसिकली हिंट। हिंट इन द सेंस कि मतलब मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, मैं यही क्लास के इसमें पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आपको। एक दो दिन का टाइम देना, संडे तक कर दूंगा। आप उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के ये आंसर खुद लिखोगे, क्योंकि अब आपको लार्जर थॉट प्रोसेस स्ट्रेटेजिक कल्चर का मैंने बता दिया है। ठीक है जी। आगे आने वाली क्लासेस में सर आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट करके रखिएगा कि आपको होमवर्क दूंगा, मैं कई जगह पर रेफरेंसेस दूंगा, कई जगह पर नहीं दूंगा, कई जगह पर मैं आपको खुद बोलूंगा कि रिसर्च करो। एंड यू नो व्हाई आई वांट यू टू डू दैट इज, मतलब मैंने खुद आइडेंटिफाई करके अपने वर्कबुक में लिखे हुए हैं क्वेश्चंस जो आपको मैंने देने हैं आपके रिसर्च के पर्पज से। बिकॉज आप जब खुद रिसर्च करोगे ना तो क्या होगा, दो तरीके की प्रॉब्लम आएगी। पहला कि आप गलत पढ़ोगे, तो आपको वहां पर मैं इंटरवीन करके ठीक करवा पाऊंगा डाउट क्लास में पूछ के कि भाई हाँ भाई क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। और दूसरा ये है कि बेटा जब आप खुद थोड़ा सा रिसर्च के एक्टिविटी में पढ़ना शुरू करोगे, मैं गाइड करूंगा आपको कि कहाँ से आपको निकालने हैं पेपर्स, कैसे करने हैं, क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। पर उसके बाद जब आप ये सब चीज़ों को करना शुरू करोगे ना बेटा, तो उसका एडवांटेज ये होगा कि अब पेपर टू अपन का दिसंबर में जब खत्म हो जाएगा बेटा, उसके बाद अगले 8 महीने आपको मैनेज खुद करना है मेंस तक। तो मेंस तक अगर आपको मैनेज खुद करना है तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी सर, कि कहाँ से कैसे कैसे आपको डिगिंग आउट करनी है चीज़ों की। ठीक है जी। चलो आज यहीं रोकते हैं। कल मैंने क्लास जो है पॉल साइंस की 6 बजे रखी है, और 6 बजे वो कनाडा की क्लास रखी है मैंने, इंडिया कनाडा की। उसको हम लोग थोड़ा एक बार समझने की कोशिश करेंगे, ताकि उससे आपको, जैसा मैंने कल भी आपको बोला था, कि एक आइडिया मिलेगा कि इवन दो थिंग्स विच आर नॉट इन द सिलेबस उनको न्यूज़पेपर से कैसे पढ़ना है, ताकि उनसे इंसाइट्स मिले टू लिंक थिंग्स विच आर इन द सिलेबस। तो कल वो 6 बजे मिलेंगे, 1 आवर लगेगा उसको करने में। और उसके बाद फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वील हैव रेगुलर क्लासेस, वील स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 62 ऑन मंडे देन। तो कल की क्लास के लिए आप लूज A4 शीट्स पे ही नोट्स बना लेना, दैट विल बी सफिशिएंट, क्योंकि उसके लिए वर्कबुक नहीं है। ठीक है जी। 9:15 मिलते हैं जी इकोनॉमिक्स की क्लास में। थैंक यू।